Okay, let's start. First one. 150 gram of glucose is dissolved for 500 ml of solution. If density of solution is 1.2 gram per milliliter, find molality, percentage weight by volume, percent W by W of solution. Also find mole fraction of glucose. Tell me. कैसे करेंगे? So, say कैसे करेंगे? How to do this question? 120 gram of glucose is dissolved to form 500 ml of solution. क्या क्या दिया हुआ है? Mass of solute. What is mass of solute? 120 gram. Mass of solution, solvent ही निकाल लो सीधा. Solvent का mass कितना है? Solution कितना मिलीलीटर है? Solution is 500 milliliter and density is 2. So it is the mass of solution. Mass of solution कितना हो गया? Five hundred into 1.2, 600. 600 minus 120, that is 480. 480 gram of solvent. So 120 gram of solute and 480 gram of solvent. Right? समझा ना? अभी what do you want? Molarity. So molarity क्या होता है? Number of moles of solute by divided by volume of solution into 1000 milli. Basically 1 liter में कितने होते हैं, right? So how many moles of solute are present? Solute की कितना मास है यहाँ पे दिख रहा है ना? Moles of solute. Glucose का molar mass C6H12O6 है is 180. So number of moles of solute. Solute के 120 by 180, that is 2 by 3 moles. So number of moles of solute is 2 by 3 moles, right? So solute is 2 by 3 moles. And what volume? In what volume of solution? Solution का volume कितना है? 500 ml, right? So in 1 liter, how much it will be? 2 by 3 moles in 500 ml. So 1 liter में कितना होगा? Two by 3 moles in 500 ml. Sir, 500 ml is 1.3 half liter. Correct. 1.33. So molarity is 2 by 3 into 2. That is 1.33 molar. That is 1.33 molar solution. वापस समझाऊं. Next, molality. Molality क्या है? What is molality? moles of solute by mass of solvent by mass of solvent. So how many moles of solute are there? Solution में आपने पास 2 by 3 moles of solute है. And what is mass of solvent? 480 gram. Right? So divide by 480 into 1000. Per kg चाहिए आपको, तो per gram इतना हो गया, into 1000 कर लो. So this is 240. 1000 by 720. 1000 by 720 is 125 by 90. 0.38. 127 है. Sorry. 1.38. 2. Sorry. 35. No, 1.3. 1.38. So molarity is 1.38. समझा? Now percent weight by volume. Percent W by V. Percent weight by volume कितना होगा?
ये आ रहा है ना समझ में? अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप पूछो, प्लीज पूछो। क्षितिज, Yes, sir. Sir, weight by volume तो 25 है. okay, percent weight by volume. Percent weight by volume is what weight of solute is present in 100 ml of solution. So what weight 120 gram is present in 500 ml. So 100 ml में into 5. The answer is 1.2 percent weight of sorry, Sir, ये वाला समझ में calculation. See 100 ml में कितना, तो डिवाइड बाय 5 करना है, राइट? तो इनटू 100 करना, सॉरी। तो 24% by W by V, 24% by V मतलब 24 ग्राम is present in 100 ml of solution, right? Yes, sir. Now percent W by W, percent W by W is what? Percentage of weight present per 100 gram, sorry, percentage of mass of solute in grams present in 100 grams of solution. So 120 gram of solute is 20%. present in 600 grams. So answer is into 100 कर लो, तो 100 ग्राम का आ जाएगा 20. So 20% W by W solution. So जो solution है that is 20% weight by weight. Next one. 1, 2, 3, 4. Four more questions. Then we'll move to next topic. नेक्स्ट वन, 2 मिनट लो, फटाफट करो। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। हाँ, है किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट। Calculate molarity, molality, normality, and normality of 98% W by W of H2SO solution if density of solution is 1.8 gram per milliliter. Take 2 minutes and solve it. Okay. Calculate molarity, molality, and normality of 98% weight by W by W of H2SO. So 98% W by W of solution. मतलब क्या है? 98% W by W का मतलब क्या होता है? 98 gram of solute, 98 gram of solute is present in 100 gram of solution. In 100 gram of solution. So अभी क्या चाहिए आपको? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? ना 100 ग्राम है, डेंसिटी 1.8 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? मास बाय वॉल्यूम 100 बाय मास बाय डेंसिटी 1.8, कितने मिलीलीटर का सॉल्यूशन? 1000 बाय 18, 1000 बाय 18 is 500 बाय 9, तो 509 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? अब बताओ मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना होगा? फर्स्ट इज मोलैरिटी,
How many moles present per liter? 1 mole present in 500 by 9, तो पर मिलीलीटर इतने मोल्स, तो 1000 मिलीलीटर का इंटू 1000, ये हो गया 2, 18 molar solution. So molarity of solution is 18. Molarity of solution is 18. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Now next is molality. Molality निकालो तुम. Molality and normality निकालना है. Molality कितना जाएगा? Second is molality. Molality is number of moles present per kg of solvent. तो मोल्स तो पता है, 1 मोल है. सॉल्वेंट का कितना मास लिया है वो चेक कर लो आप. टोटल मास कितना था? 100 ग्राम. तो सॉल्वेंट कितना हो गया? 2 ग्राम. सो 1 मोल प्रेजेंट 2 ग्राम. तो ये आ गया 500. समझा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? क्वेश्चन ही थी. नॉर्मेलिटी अब जैसे ग्राम इक्विवेलेंट चेक करना था हमको. H2SO4 है, तो H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, या इक्विवेलेंट वेट बोलता है. इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट है सॉरी, मोलर वेट है अपॉन मोलर मास अपॉन n फैक्टर. जैसे H2SO4 ऑन डिसोसिएशन गिव्स 2H+, तो उसका n फैक्टर 2 है. अब बाकी डिटेल में दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग. सो 98 अपॉन 2, 49 ग्राम. सी, जैसे मोलिकुलर मास है 98 ग्राम, वैसे इक्विवेलेंट वेट होता है, नहीं? तो इक्विवेलेंट वेट इज 49 ग्राम H2SO4. तो आपको बताना है हाउ मेनी इक्विवेलेंट वेट्स पर लीटर. हाउ मेनी इक्विवेलेंट वेट्स पर लीटर. तो 98 ग्राम डाला आपने, 98 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट वेट हो गए? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट मतलब एक अमाउंट है, फिलहाल के लिए आपके वो एक अमाउंट है. तो अमाउंट कितना होता है? 1 इक्विवेलेंट वेट मतलब हाउ मेनी ग्राम्स? See, for now, just remember equivalent weight is a quantity. ठीक है? So, equivalent weight of H2SO4 is 49 ग्राम. तो 49 ग्राम में एक इक्विवेलेंट है, तो 98 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट हो गए? 2. 2. So actually we have 2 gram equivalents of H2SO4 dissolved in 500 by 9 milliliter of solution. तो 1000 मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे? बेसिकली मोलारिटी को इनटू 2 कर दो आप, तो 36 आएगा आंसर. तो नॉर्मेलिटी चाहिए आपको, तो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय सॉल्यूशन, volume of solution in milliliter in ml into 1000 कर लो. तो number of equivalent weights 98 by 49, 2 हो गया. Volume is 500 by 9 into 1000 हो गया. ये हो गया 236. So normality of the solution is 36. That's it. Yes. चाहिए तो चाहिए तो वापस एक्सप्लेन करूंगा, बट पूछो. सर आप परसों का क्लास भेज सकते हैं मेरे अदरवाइज लिए? नेक्स्ट वन भेज भी दूंगा बेटा. बाकी सबको बता दूं मैं, सी जो भी क्लास आपका मिस होता है ना, व्हाटएवर क्लास यू मिस, स्टडी स्पेक्ट्रम में सब अपलोड हो रहा है. कल तक सब हो भी जाएगा. studyspectrum.com में ना ऑनलाइन वीडियोस
वीडियो लाइब्रेरी में जाना ना, ऑनलाइन लेक्चर्स है, उसमें आप सर्च कर लेना, जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा। ओके तो क्या कभी मैं भूल जाता हूँ, कभी हाँ कभी मैं भेजता हूँ तो ओपन नहीं होता है, 2-4 बार ऐसा वो भेजा मैंने, ओपन नहीं हो रहा था, तो वो सब अपलोड कर दिया वहां पे। तो अभी आज अगर आपने कुछ मिस किया है तो कल शाम को आपको मिल जाएगा वहां पे, डेट वाइज एवरीथिंग यू कैन सर्च, इजीली मिल जाएगा वहां पे। सर। तो आप देखोगे तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना, फिर मैं सर्च करके भेज दूंगा। ओके, ये हो गया, कहा था ना। हाँ ना, नेक्स्ट एक डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है छोटा सा, अगेन नॉट मच ऑफ केमिस्ट्री, मोर ऑफ मैथ्स, थोड़ा लॉजिक समझ लो। How much water should be added to 1 liter of decimolar solution to make it centimolar? To make it centimolar. सोल्यूट से मतलब नहीं है, कोई भी सोल्यूट रहा होगा, वो उसका डेसीमोलर सोल्यूशन था, तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट सेंटीमोलर सोल्यूशन? वन लीटर डेसीमोलर सोल्यूशन है एंड यू हैव टू मेक इट सेंटीमोलर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? एक लीटर सोल्यूशन है, डेसीमोलर है, डेसीमोलर मतलब कितने मोल सोल्यूट के हैं, 1 लीटर है इसमें, ठीक है, डेसीमोलर है, डेसी इज 0.1, तो इसमें कितना सोल्यूट है, 0.1 मोल सोल्यूट, राइट। अभी आपको इसमें पानी डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, सो दैट दिस बिकम्स सेंटीमोलर। मुझे मालूम नहीं कितना बन जाएगा ये, बट उसमें 0.01 मोल्स पर लीटर हो जाएंगे। आशु बताओ, बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो बताओ 0.1 मोल पर लीटर चल रहा है, उसको 0.1 मोल पर 10 लीटर करना, मैंने आंसर ही बोल दिया, आप तो बता दो। 9 liters. 9 लीटर, दैट्स इट। इसमें केमिस्ट्री है ही नहीं कुछ, बेसिक मैथ्स है, और वो भी नहीं, लॉजिक ही है ऐसी। आपको क्या करना है, 0.1 मोल पर लीटर दिख रहा है, राइट, यू हैव टू मेक इट 0.01 मोल पर लीटर, राइट, आ रहा समझ में? तो ये 0.1 मोल मुझे दिख रहा है 1 लीटर है, अब ये तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ पानी ऐड करना है, तो 1 को 10 कर दो तो 0.1 0.10 0.01 हो जाएगा, तो 9 लीटर और ऐड कर दो। नहीं समझा तो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सी सपोज पहले का वॉल्यूम कितना है, मोलैरिटी कितना हो गया पहले का, 0.1, एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर। बाद में क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया 0.01 एंड वॉल्यूम का पता नहीं, समझो V। तो इसमें कितने मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट as per this 0.1, as per this number of moles of solute 0.01 V, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी सोल्यूट तो मैंने चेंज नहीं किया है, सोल्यूट इज स्टिल सेम, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, तो नया वॉल्यूम कितना होना चाहिए, सो न्यू वॉल्यूम शुड बी V should be equal to 0.1 divided by 0.01, राइट, तो ये हो गया 10 लीटर, पहले से 1 लीटर सोल्यूशन था, नाउ इट इज 10 लीटर, तो कितना ऐड किया आपने, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इज 9 लीटर, सो water to be added is 9 लीटर। कितना पानी ऐड करना है, 1 लीटर, 9 लीटर। आया समझ में, नहीं समझा तो वापस समझाऊं। अभिषेक
सर अभिजीत सर आ रहा है? सर्वेश सर Yes, sir. सर सर एक बार और समझा दीजिए। ओके हाँ ठीक सी इसमें बड़ा डिफिकल्ट सा कुछ नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या करना है आप देखो, यू हैव 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये कितना आपके पास? एग्जैक्टली 1 लीटर है, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में इसकी मोलैरिटी 0.1 है, तो सोल्यूट कितना है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1। क्यों? मोलैरिटी 0.1 है, तो 1 लीटर में 0.1 मोल्स है, राइट। So molarity of solution is 0.1 molar, मतलब 0.1 मोल्स पर लीटर। एंड सोल्यूशन भी 1 ही लीटर लिया तो उतना ही होगा, ठीक है। अब इसमें आपने वाटर ऐड करना है, ऐड करते जाओ, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सोल्यूट तो नहीं ऐड करे तो सोल्यूट तो उतने ही मोल्स रह जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द टाइम what do you get is, I don't know how much volume, but V liters of 0.01 molar solution. Yeah, V liter of 0.01 molar solution. तो 0.01 मोल्स पर लीटर है, तो V लीटर में कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो सोल्यूट कितना है? यहां पे लिखा हुआ है 0.01 मोल्स पर लीटर। So in V liters, how much it will be? 0.01 V. So earlier number of solute were 0.1 moles. Then moles of solute in the second case are 0.01 V. तो दोनों तो इक्वल होने चाहिए ना, बिकॉज सोल्यूट तो मैंने कम ज्यादा किया नहीं। तो 0.1 इज इक्वल टू 0.01 V। तो V का वैल्यू हो गया 0.1 अपॉन 0.01, ये हो गया 10 लीटर। मतलब इधर बन गया मेरे पास 10 लीटर। तो 1 लीटर पहले से था और अब हो गया 10 लीटर। तो कितना ऐड किया वाटर आपने? 9 लीटर। 9 Yes, लीटर sir. वाटर इज एडेड, दैट्स इट। ओके चलो नेक्स्ट। How many ml of 0.5 molar calcium hydroxide CaOH whole twice solution should be mixed with 500 ml of 0.3 molar NaOH solution such that concentration of OH minus in solution is 0.6 molar? तो क्या दिया आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice है, ठीक है, और NaOH है। तो समझो ये क्या करते हैं मालूम है? जब जाके आप वाटर में से डिसॉल्व करोगे ना, तो Na प्लस और OH माइनस अलग हो जाता है। तो अगर 1 मोलर NaOH सोल्यूशन लोगे तो उसमें अगर मैं OH माइनस की खाली बात करूं तो 1 मोल आएगा। अगर 1 मोलर NaOH सोल्यूशन है तो OH माइनस का भी 1 मोलर है। बट अगर 1 मोलर CaOH होल ट्वाइस लोगे तो 2 मोलर OH माइनस है। अगर 1 मोलर CaOH होल ट्वाइस लोगे आप सोल्यूशन, तो अगर OH माइनस के टर्म्स में कंसंट्रेशन बतानी है आपको तो 2 मोलर बतानी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज ऑन डिसोसिएशन 1 मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस गिव्स 2 मोल्स ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको लगाना, बड़ा आसान सा है। 2 मिनट सोचो, नहीं होता तो आई विल एक्सप्लेन। बताओ, number of moles of OH minus in 0.5 molar, how much volume? 500 ml. How many ml? अच्छा, V ml of 0.5 molar calcium hydroxide solution. Yes. कितने मोल्स आएंगे? V मिलीलीटर लिया है मैंने, 0.5 मोलर CaOH होल ट्वाइस। तो OH माइनस के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1, राइट। तो V वॉल्यूम है, तो V इंटू
1, चाहे तो 1000 से डिवाइड करो या उधर कैंसिल हो जाएगा बाद में। फिर इधर पे क्या लिया हमने, should be mixed with 500 ml है। तो concentration number of moles of OH minus in 500 ml of 0.3 molar NaOH solution is 500 into 0.3। तो टोटल कितना हो गया, V plus 150। This should be equal to फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.6 मोल्स इन V plus 500। So V plus 150 equals to 0.6 V plus 300। So 0.4 V is equal to 150, V is equal to 375। तो 375 ml। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, समझने की कोशिश करो, नहीं आता तो मुझसे पूछो, I'll explain it। से आया समझ में? सर वो OH वाला आप क्या कह रहे थे, एक बार समझा सकते हैं आप? See, OH minus, अभी NaOH आप लेते हो ना, if you talk of NaOH, so let us assume we have taken 1 mole of NaOH, right? How much? 1 mole of NaOH। जब डिसोसिएट होगा तो एक्चुअली इट डिसोसिएट्स इन Na plus and OH minus, right? So 1 mole of NaOH gives 1 mole of OH minus। इसमें कोई शक? 1 mole of NaOH will give you 1 mole of OH minus। Yes. इसमें कोई डाउट? नहीं सर। डाउट है या नहीं है? नहीं है, नहीं। If you take 1 mole of COH whole twice, अगर आप ये लेते हैं तो इसमें कितने मोल्स निकलेंगे? ये जब डिसोसिएट होगा तो Ca2 plus and 2 OH minus देगा, राइट? तो 1 mole of COH whole twice कितना देता है? 2 mole of OH minus देगा? हाँ, यस सर। Okay. Now let's start. I have made an assumption. How many ml of? So let us assume V milliliter. So V milliliter of 0.5 molar COH whole twice solution है. So V ml है. 0.5 moles of COH whole twice will give me 1 mole of OH minus. तो V ml में कितने आ जाएंगे? V into 1. Actually ये V ml है तो 1000 से डिवाइड करना है तो करो नहीं तो leave it। तो क्योंकि वो सब ml में है तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेट करेंगे। सो V मिलीलीटर में कितना OH माइनस मिलेगा, कितने मोल्स मिलेंगे? तो 1 लीटर में 0.5 into 2 मिलते तो 1, तो V लीटर में V into 1 by ml है तो अपॉन 1000 पर वो बाद में कैंसिल ही हो जाना है। So this is number of moles of... नहीं समझा बेटा, क्या बोल रहे हो? सर एक बार वापस समझाइए इसी को। ओके जी, पूरा मैं रब करके समझाता हूँ। See, I know COH whole twice जितना भी लोगे आप, जब डिसोसिएट होगा तो 2 मोल्स Ca2 प्लस और 2 OH माइनस में डिसोसिएट होना है। तो अगर आप 1 मोल ये लेके आओगे, 1 मोल लेके आओगे तो OH माइनस के 2 मोल मिलेंगे और इसका 1 मोल मिलेगा आयन का Ca2 प्लस, नहीं? अगर इसके आप 2 मोल लाओगे तो इसको आपको 4 मोल मिलेंगे। ठीक है, ये स्टेप समझा? यस सर। हाँ, अगर COH का 0.5 मोल्स मोलर सॉल्यूशन मतलब 0.5 मोल्स 1 लीटर में, राइट? तो VmL में कितने होंगे? ये तो एक्चुअली याद ही कर ले, जैसे मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बस यूनिट्स का थोड़ा केयर करना है। तो जैसे मैंने पूछ लिया आपसे COH वोल्ट वाइज के कितने मोल्स हैं, तो 0.5 इंटू
V, बट होना चाहिए लीटर में, तो अपॉन 1000। ये COH होल ट्वाइस के मोल्स हैं। अब एक COH होल ट्वाइस में 2 मोल्स OH माइनस के हैं, तो V अपॉन 1000। मैंने 1000 से इसलिए डिवाइड करने मना किया, बाद में कैंसिल ही हो जाना है। करना है तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये स्टेप आपको समझ में आ गया है? यस सर, यस। अब देखो अगले स्टेप में आपने NaOH का क्या स्टोरी लिया है। इतने मोल्स मेरे पास आ चुके हैं, किसके? OH माइनस के। अब NaOH का जरा स्टोरी देखो। NaOH का कितना मोलर सोल्यूशन है? 0.3 मोलर, मतलब 0.3 मोलर सोल्यूशन, moles of NaOH, moles of NaOH is present in 1 liter, is present in 1 liter। तो 500 ml में कितना होगा? 500 मतलब हाफ, तो 0.3 डिवाइड बाय 2, राइट? इतने मोल्स हो गए। अब एक मोल NaOH में एक ही मोल OH माइनस आना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस in NaOH solution is 0.3 by 2, that is 0.15। देख लो, ये समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, तो टोटल कितने मोल्स आ गए मेरे हाथ में? ये आ गए थे CH होल ट्वाइस से, और ये आ गया मेरे पास NaOH से। बट टोटल अगर मैं राइट साइड से सोचूं तो आई हैव 0.6 मोलर सोल्यूशन, जिसका पूरा वॉल्यूम V प्लस 500 अपॉन 1000 हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? V ml इसका लिया, 500 ml इसका लिया, तो टोटल V प्लस 500 हो गया। V प्लस 500 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स में हो गया, और 0.6 मोलर सोल्यूशन है, तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया। सबको 1000 से डिवाइड किया तो V प्लस 150, 0.6 V प्लस 0.6 इंटू दिस इज 300, तो ये इधर आ 0.4 V इक्वल्स टू 150, तो V is equal to 150 upon this, that is 375। So 375 ही आ गया ना? हाँ, 750। So 375 milliliters। So how much volume of COH whole twice should be taken? 375 ml। यस Next one, यस next सर, one। यस सर। Okay, next one। Next last question है, करो फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर वो लास्ट क्वेश्चन में क्या 150 ml प्लस 0 मतलब? अरे यार, कुछ मोलारिटी डालना। 100 ml पॉइंट एसिड ले लो, 1.150 ml of 0.1 मोलर किसी दूसरे एसिड HCl, 100 ml of 0.2 molar H2SO4 solution है, and we have added 150 ml of 0.1 molar HCl। तो मिला के कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा एसिड का? तो आपको बताना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन में गड़बड़ है, आप कैसे सुने? ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा बेटर कर देते हैं, इसमें डाउट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना, ठीक है? करो, दोनों को सोल्यूट ही कंसीडर कर लो। 100 ml of 0.2 molar H2SO4 and 150 ml of 0.1 molar HCl। हंड्रेड ml of 0.2 molar H2SO4, उसमें कितना सोल्यूट होगा? कितने मोल्स होंगे सोल्यूट के? जीरो 0.02 मोल्स। करेक्ट, 0. और 150 ml of 0.1 molar HCl में
Moles of H2SO4 in mix is 0.2 mole per liter है, 100 ml है, तो divided by 2, that is 0.02. Number of moles of HCl. HCl का कितना जाएगा? 0.1 मोलर है upon 150 ml into 1000 per liter into 1000, कितना हो गया? 0.015 हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ? टोटल कितना हो गया? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलैरिटी ऑफ मिक्स इज 0.02 प्लस 0.015 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हो गया 100 प्लस 150 into 1000, तो ये हो गया 0.035 250 into 1000, ये हो गया 0.1 0.35, तो 0.14 होगा। अगर मैं यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करता था, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू H प्लस पूछता था, ऐसे लिखते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। एक्चुअली दिस इज मोर सेंसिबल क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा था कुछ, तो मैंने ऐसे लिख दिया। बेटर वर्जन इज दिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना होता है, तो आप कैसे निकालते थे? मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू H प्लस निकालनी है आपको, वो आपका बेटर क्वेश्चन बनता था। इसमें आपको मोलैरिटी ऑफ H प्लस निकालना, मतलब मोल्स पर लीटर ऑफ H प्लस। H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस देगा, और HCl जब डिसोसिएट होगा तो एक ही H प्लस देगा। इसके बेसिस पे आपको निकालना है मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 do you have in mix? So 0.02. 0.02। और एक मोल H2SO4 में कितने मोल्स H प्लस निकलेंगे? 2 मोल। तो 0.02 में कितने मोल्स H प्लस निकलेंगे? 0.04. 0.04 बस। तो 0.04 वहां से आ गए और 0.015 यहां से आ गया। अगर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालने होते इन H2SO4 सॉल्यूशन, तो इनटू 2 कर देता था मैं, 0.04 हो जाता था। और यहीं पे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इन HCl सॉल्यूशन, तो ये उतना ही रहता था। ऐड करता था मैं 0.04 प्लस 0.1, तो 0.055 जाता था, बाकी सब कुछ सेम होता था, 0.22 हो जाता था। मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस होता था 0.22 मोल्स पर लीटर। समझा? अब ये आखिरी वाले में एक कॉन्सेप्ट बताया था, H2SO4 और NaOH मिक्स करना है। तो ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हमने, 10th में भी रहा होगा। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, राइट? तो H2SO4, ये रिएक्शन आप बहुत कॉमन है, पढ़ाई होगा आपने, प्लस 2 NaOH। ये एक मोल H2SO4 2 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करता है, राइट? टू फॉर्म Na2SO4 प्लस 2H2। तो एक मोल H2SO4 2 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है? तो आपको बस यही सोचना है, इतने मोल्स H2SO4 के लिए हैं, इतने मोल्स NaOH के, इसका कुछ उसके कुछ को न्यूट्रलाइज कर देगा, बचेगा लास्ट में कितना H2SO4 या कितना NaOH, ऐसा कुछ सोचना है। वो 2 मिनट देता हूँ, शांत दिमाग से सोचो। ये समझ में आया ना जो मैंने एक्सप्लेन किया? दिस इज क्लियर टू यू? ये 10th में पढ़ा था ना, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं टू फॉर्म अ सॉल्यूट, सॉल्ट एंड वाटर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस वो स्टोरी है।
H2SO4 के 1 मोल NaOH के 2 मोल को न्यूट्रलाइज करता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको सोचना है किसका कितना लिया, तो अब उसमें मिक्स में किसका कितना बच जाएगा, उसके हिसाब से मोलारिटी क्या होगी। फिर बाद में आप मोलारिटी विथ रिस्पेक्ट टू H+ भी बताना। ये भी हिंट दे देता हूं, OH- पूरा कंज्यूम हो जाएगा जो मुझे दिख रहा है यहां से। मोलारिटी भी H2SO4 की ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा ली है सॉल्यूशन की, और उसमें H+ आयंस भी ज्यादा आएंगे। उधर NaOH का वॉल्यूम भी कम लिया सॉल्यूशन का, उसकी मोलारिटी भी कम है, और 1 मोल में एक ही OH- निकलता है। ओके चलो मैं बताता हूं। सी पहले H2SO4 के कितने मोल्स है वो बता दो। 0.01. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO 0.02। अच्छा 0.0 सर आंसर 0.4 0.4 नहीं रे, इससे तो कम ही आएगा ना, और उल्टा न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो आंसर तो 0.1 से कम ही आना चाहिए। H+ टर्म्स में बात करोगे तो भी उतना नहीं आएगा। अब NaOH का कितने मोल्स है, NaOH के कितने मोल्स हो गए 0.1, और वो भी 50 ml है, तो 0.1 डिवाइड बाय 20 कर लो, तो 0.005 होगा। ठीक है, समझा? 0.1 डिवाइड बाय 20 0.0। तो H2SO4 के कितने मोल्स है हमारे पास में 0.01 मोल्स। NaOH के कितने मोल्स हो गए 0.005. 0.005। अब देखो आप कौन किसके कितने को क्या न्यूट्रलाइज करेगा, कितना H2SO4 कितने NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या बचेगा, सोचो आप। 1 मोल NaOH कितने मोल इसको न्यूट्रलाइज करता है H2SO4 को, जिसके मोल्स कम है उसके हिसाब से सोचो आप। NaOH का 1 मोल will neutralize how many moles of Half more. 0.5. H2SO4 0.5, तो 0.005 moles of NaOH will neutralize how many moles of H2SO4? Sir, two sir. 0.005 moles of NaOH will neutralize 0.0025 mole of H2SO। आधे को करेगा ना, therefore ये इसके 0.0025 से मिल गया, तो 0.01 माइनस 0.0025 ये कितना हो गया 5 7 कितना हुआ कितने हो ना 0.075 moles of H2SO4 left in 150 ml of solution। इस हिसाब से आप जाओगे तो मोलारिटी कितना हो गया, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 0.0075 मोल्स बचे हैं 150 ml में, तो 150 into 1000 ये कितना होगा 7.5 1/20.05। So molarity of solution is 0.05। समझा? Yes. सर। So I believe I have to stop here. Next class 2 और टॉपिक बचे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है,
चलो then I'll stop. 2 o'clock ही हो गया